Good morning, student of class 5. How are you? I hope you all are fit and healthy. So student, today date is 4th December 2020 and I am teaching you chapter number 23 and name of the chapter is Reaching Places. So student, let's do little recapitulation what we have done in our previous video. So student, in the previous video we discussed that due to the advancement of science and technology, there are variety of vehicles which change the life of the human beings. Now in present time it become very comfortable to move from one place to another, or you can say in any part of the country also, or even in other countries also. So student, in yesterday video I discussed or I explained you about land transport. See student, when we are talking about the means of transportation, then it is divided into three types, that is land transport, water transport and air transport. And when we are talking about the land transport student, when we are talking about the land transport student, then land transport is further divided into two types, that is roadways and another one is the railways. So let's do quick recapitulation of the roadways, because already I explained you roadways in detail in the previous video. So I will do quick recapitulation of the roadways, and after that we will start with the railways. So student, when we are talking about the roadways, so the variety of vehicles which are moving on the road, for example car, buses, scooter, motorcycle, cycle, so extra. These are the vehicles, different variety of vehicles which are moving on the road. And when we are talking about the roadways student, then we talk about the different types of roads. For example, every state has its own highways. जितनी भी बेटा स्टेट होती हैं उन सारी स्टेट्स के अपने हाईवेज होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, हु कंस्ट्रक्ट और हु बिल्ड द हाईवेज? सो ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, जिसकी भी गवर्नमेंट होगी बेटा उस स्टेट में, सो उसी की ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू बिल्ड द हाईवेज एंड आल्सो डू द मेंटेनेंस ऑफ द हाईवेज। आफ्टर दैट इसमें हमने डिस्कस किया था बेटा नेशनल हाईवेज, उसके बाद हमने इसमें रोडवेज में डिस्कस किया था नेशनल हाईवेज। सो व्हाट डज द नेशनल हाईवेज डू? These national highways connect the big cities, or you can say it connect the major cities, okay,
तो नेशनल हाईवे क्या करती है, ये इट कनेक्ट द मेजर सिटीज ऑफ आवर कंट्री एंड आफ्टर दैट फिर हमने डिस्कस किया था एक्सप्रेस वे, एक्सप्रेस वेज। सो एक्सप्रेस वे में क्या था बेटा, देयर आर मेनी लेन्स। ये बिग सिटीज में, मेट्रो सिटीज में आपको एक्सप्रेस वेज रोड्स मिलेंगे। देयर आर मेनी लेन्स, 2 3 4 5 6 लेन्स। सो it due to so many lanes in the expressways the vehicles are moving with a very high speed। जब इतने ज्यादा ब्रॉड बड़े बड़े रोड होंगे, वो भी कई लेन है, 2 से लेके 4 5 6 लेन तक, जब इतने बड़े बड़े ब्रॉड लेन मिलेंगे तो वाई वी से इट एज ए एक्सप्रेस, हम इसको एक्सप्रेसवेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे बेटा व्हीकल्स दे आर मूविंग विद अ वेरी हाई स्पीड। और उसके बाद नेक्स्ट हमने फर्स्ट हाईवे ऑफ इंडिया का डिस्कस किया था। द फर्स्ट हाईवे ऑफ इंडिया वाज बिल्ट बाय शेर शाह सूरी। ओके, तो एंड व्हाट वाज द, एंड ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है, द फर्स्ट हाईवे ऑफ इंडिया वाज बिल्ट बाय, तो आंसर इज शेर शाह सूरी। एंड नेक्स्ट इज व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट हाईवे, फर्स्ट हाईवे का नाम क्या था, तो द नेम ऑफ द फर्स्ट हाईवे वाज ग्रैंड ट्रंक रोड। इन द शॉर्टकट वी आल्सो से इट एज ए जीटी रोड। एंड आफ्टर दैट स्टूडेंट वी हैव डिस्कस वन मोर, रोडवेज में नेशनल हाईवेज हो गए, एक्सप्रेसवेज हो गए, दे अलाउ द मूवमेंट ऑफ द व्हीकल्स विद अ वेरी हाई स्पीड। ठीक है, बहुत तेजी से व्हीकल्स मूव करते हैं क्योंकि ये बहुत ब्रॉड है और कई लेन्स भी हैं। ठीक है, नेशनल हाईवे हो गया, मेजर सिटीज को कनेक्ट करते हैं। फर्स्ट हाईवे इज इंडिया इज ऑफ द ग्रैंड ट्रंक रोड मेड बाय द शेर शाह सूरी। नाउ नेक्स्ट इज द इंटरनेशनल, नेक्स्ट जो इसमें हमने डिस्कस किया इंटरनेशनल हाईवेज, इंटरनेशनल हाईवेज। सो फॉर एग्जांपल बेटा हम लोग किस कॉन्टिनेंट में रहते हैं, एशिया कॉन्टिनेंट में रहते हैं। ओके, सो there are our name of the our country is what, the name of the our country is India। तो इंडिया के बहुत से नेबर्स कंट्रीज भी हैं। सो ऐसे हाईवेज जो हमें हमारी नेबर कंट्रीज से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, द हाईवेज विच कनेक्ट अस टू द आवर नेबर्स कंट्री, सो दैट हाईवेज आर नोन एज इंटरनेशनल हाईवेज। सो दैट हाईवेज आर known as international highways which connect us with the different countries। ठीक है, now after that let students start with the railways। one more thing we have I have explained you that the roads are also of two types, metalled and non-metalled। So metal roads are those which are also known as pakka roads made of a stones, iron, rod, cement, sand। So these are very strong, that is the reason we say it as a pakka road। And kacha road, this type of a road often we see in the विलेज एरिया। ऐसे रोड हम लोग को मैक्सिमम में कहाँ देखने को मिलते हैं बेटा, विलेज एरियाज में। और इंडिया हैज अ वेरी गुड नेटवर्क ऑफ द रोड्स, इट कनेक्ट विलेजेस टू द टाउन, टाउन टू द सिटीज, cities to the big cities, and that is the reason due to good network of roadways in our country everyone getting a good facility। क्योंकि बेटा जब व्हीकल्स जाने की जगह होगी तभी तो आप, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था इन आवर डे टू डे लाइफ मैक्सिमम थिंग्स आर कैरिड बाय दिस रोडवेज, द थिंग्स विच वी नीड फॉर आवर डेली यूज लाइक फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, इज इट क्लियर, मिल्क है, सो एक्स्ट्रा दीज आर द थिंग्स विच आर वी नीड डेली that carry in all parts of the country with the help of the roadways। Now railways, now see student, when we are talking about the railways, so student we are living in which continent, that is Asia। So in Asia the position of Indian railways is at second position।
So some important information I tell you about the railways, and after that with the help of the book I will cover the chapter. So in Asia continent, our position is second, okay, and in the world our position is fourth. Is it clear? So this is a little information about Indian Railways in Asia continent. अगर एशिया कॉन्टिनेंट जिसमें हमारी कंट्री अगर वहां हम बात करते हैं तो हमारी पोजीशन इंडियन रेलवेज की क्या है बेटा? सेकंड है. एंड अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आवर कंट्री? दैट द पोजीशन ऑफ आवर कंट्री इज फोर्थ पोजीशन. ओके, अब इंडिया की अगर हम लोग लेंथ वाइज बात करें कि रेलवे ट्रैक्स कितनी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेलवे ट्रैक्स इन इंडिया, तो बेटा ये है, दिस इज 66,000 किलोमीटर. ठीक है, अब ये डिस्कस कर लिया कि इंडिया की रेलवे ट्रैक की लेंथ लगभग कितनी है पूरे. इट मींस इट इज मैक्सिमम पार्ट ऑफ द कंट्री इज कवर्ड बाय द रेलवेज. इट इज 66,000 किलोमीटर. नाउ नेक्स्ट, who introduce railways in India. So now student, if we are talking about this, who introduced railways in India, then what are the answer? British. Because the first train started in India is in 1853. Okay, so British introduced railways in India because at that time the rule on our country is of a British rule, and the first train was started in started in 1853. Okay, so student, in India the first train started in 1853, and from where? Between Mumbai and Thane. Note down these things. Yes, it is already given in your book also. You can take one pencil and underline this. This is very important. India is the largest network of railway lines connecting almost all part of the country. ये तो already मैंने आपसे discuss कर दिया. India first train run in 1853, and what between where it run? Mumbai and Thane. It is also given in your book, so please underline it. Many times this question asked in the examination. When was the first train started and between which it run, between which, that is Mumbai and Thane. Now ये सब हमने डिस्कस कर लिया. अब इंडियन रेलवेज की बात करें, इन योर बुक इट इज गिवन इन वेरी शॉर्ट. थोड़ा सा और डिस्कस कर देते हैं, देन वी आर टॉकिंग अबाउट. Now see student, let's talk about the different types of engines which run these train. So that 3 types of engines. How many types there are? It is not given in your book, for your understanding I am telling you. So that is the first one is the steam engine, diesel engine, and electric engine. So what are the engines which are used to run these trains? So the answer is student, steam engine, diesel engine, electric engine. But now student, when we are talking about the present time, अभी 21st, अभी present time की अगर हम लोग बात करें तो steam engine is the first engine by which the train run. But after that
there is a lot of pollution also due to steam engine because we have to burn the coal. कोयला जलाना पड़ता था, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होती थी और भाई साइंस और टेक्नोलॉजी एडवांस होती चली जा रही थी। तो ये स्टीम इंजन के बाद क्या आया, आपका डीजल इंजन आया और इलेक्ट्रिक इंजन आया। ये जो स्टीम इंजन था, नाउ दिस इज नॉट इन अ वर्किंग कंडीशन। अब स्टीम इंजन क्या आउटडेटेड हो गया है। आज की डेट में कहीं भी स्टीम इंजन यूज नहीं किया जाता बिकॉज लॉट ऑफ एयर पॉल्यूशन ड्यू टू दिस स्टीम इंजन। एयर पॉल्यूशन भी थी, नॉइस पॉल्यूशन भी था इससे। और आज मच बेटर इंजन यूज हो रहे हैं, दैट इज अ डीजल इंजन एंड इलेक्ट्रिक इंजन। So what is the advantage of these two types of a engine? The advantage of these two type of a engine is that the speed of the train is increased. जैसे स्टीम इंजन से ट्रेन उतनी तेज स्पीड से नहीं चलती थी, लेकिन डीजल इंजन इलेक्ट्रिक इंजन से ट्रेन की क्या है, स्पीड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज ड्यू टू द यूज ऑफ द डीजल इंजन एंड इलेक्ट्रिक इंजन। Is it clear? Now student, when we are talking about the trains, अब next देखो, when we are talking about the trains, जब हम trains की बात करते हैं, then further this is divided into two parts. अभी हमने क्या बात की, ट्रेन को रन कौन करते थे, इंजन। So there are three types of engine: steam engine, diesel engine, electric engine. So now steam engine is not in use, and in present time the engines which are in working condition, that is diesel engine and electric engine. What is the advantage? Advantage is that this increase the speed of the train. That's important. Now when we are talking about the trains, the train are also of two type. That is, one is known as passenger trains and another is known as goods train. Is it clear? Passenger trains and good train. Passenger train, what is the passenger train? The passenger train carry the people and their goods also. देखो बेटा, जब भी हम लोग जाते हैं कहीं लॉन्ग डिस्टेंस पे जाते हैं छुट्टी मनाने, तो हम लोग ऐसा नहीं है कि अपने संग कुछ सामान भी तो लेके जाते हैं। तो पैसेंजर ट्रेन यूजली क्या कैरी करती है, पैसेंजर्स को कैरी करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड देयर गुड्स आल्सो। भाई जो सामान होगा, ऐसा तो नहीं पब्लिक बैठ जाएगी और सामान को नीचे छोड़ देंगे, ठीक है। तो पैसेंजर ट्रेन कैरीज पैसेंजर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड देयर गुड्स आल्सो। एक होती है ट्रेन जिसको टोटली गुड ट्रेन बोलते हैं। दिस ट्रेन इज यूज्ड फॉर ओनली कैरिंग डिफरेंट थिंग्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। अब ये तुम्हारा कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है, ईटेबल आइटम्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और भी चीजें हो सकती हैं। तो गुड ट्रेन्स क्या करती हैं, दूसरे सामान को कैरी करने की काम करती हैं, ठीक है, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंट्री टू अनदर पार्ट ऑफ द कंट्री। और इसको स्पेशली गुड ट्रेन्स ही बोला गया क्योंकि इसमें पब्लिक नहीं होती है, इसमें पब्लिक नहीं होती है। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं बेटा, मालगाड़ी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि सामान ढोने वाली गाड़ी, इसलिए इसको मालगाड़ी बोलते हैं। एंड इंग्लिश वी से इट एज ए गुड ट्रेन्स। और पैसेंजर ट्रेन कैरी पीपल एंड देयर गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये अब हमने ट्रेन्स की बात कर ली, इतना रेलवेज का पूरा हमने डिस्कस कर लिया। एक शॉर्ट रिकैप्चुलेशन लेते हैं इसका। स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, इंट्रोडक्शन ऐसे दी थी कि इंडिया का रेलवेज जो एशिया में है, इसकी पोजीशन क्या है, सेकंड है। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड, देन द पोजीशन ऑफ इंडियन रेलवेज इज, देन द पोजीशन ऑफ इंडियन रेलवेज इज फोर्थ, ठीक है। अब फिर क्वेश्चन अराइज हुआ था कि इंडियन रेलवेज, इंडिया में रेलवेज को किसने इंट्रोड्यूस किया। ये क्वेश्चन इसलिए बना क्योंकि 1853 में आवर कंट्री वी डोंट गेट द फ्रीडम। एट दैट टाइम द रूल ऑन आवर कंट्री इज ऑफ द ब्रिटिश रूल। सो सबसे पहले ट्रेन चलाई थी ब्रिटिश पीपल ने इंडिया में, एंड इट इज स्टार्टेड इन 1853 एंड इट रन बिटवीन मुंबई एंड थाने। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। आफ्टर दैट हमने ये डिस्कस किया कि इंडिया का नेटवर्क जो है ट्रेन्स का बहुत बड़ा है, ठीक है। इंडिया हैज ए वेरी गुड नेटवर्क ऑफ रेलवेज, मैक्सिमम इट इज इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री के मैक्सिमम सारे पार्ट्स में ये है। तो अब इसकी कंबाइंड लेंथ इंडियन ट्रैक बेटा कितनी है, वो अभी जस्ट मैंने बोर्ड पे लिखी थी, बिकॉज इट इज नॉट गिवन इन द बुक। अगर आपने नोट कर लिया होगा तो इट इज वेरी बेटर फॉर यू, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। इसकी कंबाइंड लेंथ ऑफ द ट्रैक है 66,000 किलोमीटर,
ठीक है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद सीधे हम लोग आगे इंजन्स पे। इंजन्स में क्या हमने पढ़ा, 3 टाइप्स ऑफ इंजन है, स्टीम इंजन, इलेक्ट्रिक इंजन और डीजल इंजन। ठीक है, उसके बाद हम ट्रेन्स पे आ गए। ट्रेन्स की को भी 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। व्हाट इज द फर्स्ट वन इज नोन एज पैसेंजर ट्रेन, अनदर इज नोन एज गुड ट्रेन। सो ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर में कवर कर ली। अब हम देखेंगे, लेट नाउ हम कुछ डिस्कस करेंगे कि इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन्स कौन है। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस दैट विच आर द फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ आवर कंट्री। अब देखो, टुडे द अब हम लोग स्टडी करेंगे बेटा फास्टेस्ट ट्रेन्स ऑफ आवर कंट्री, fastest train of our country. So student, the name is given in your book, Shatabdi Express, Shatabdi Express and Rajdhani Express and next is given Duronto. Next is given Duronto Express. So student, see the name of the fastest train of our country in your book, it is given Shatabdi Express, Rajdhani Express and Duronto Express. So बेटा ये जो अपडेट है ये दिस इज नॉट द राइट अपडेट, क्योंकि ये बुक क्या है, ओल्ड बुक है। ठीक है, दिस इज अ ओल्ड बुक, ये 2 साल पहले ये बुक पब्लिश हुई थी। अगर हम करंटली अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, दीज आर द फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया, बट करेंटली प्रेजेंट टाइम में अगर बेटा हम बात करते हैं तो हमारी कंट्री की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन कौन है, वंदे भारत। ओके, फास्टेस्ट ट्रेन प्रेजेंट टाइम में अब कौन है बेटा, वंदे भारत, वंदे भारत। एंड you want to also know what was the speed of the train. So the speed of the train is 180 kilometer per hour. It means in 1 hour the train covers the distance of 180 kilometer. So the current is, जो current situation है उसमें हमारी सबसे फास्टेस्ट ट्रेन का नाम क्या है बेटा, वंदे भारत है। एंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 180 किलोमीटर पर आवर। नाउ नेक्स्ट इज गिवन नंबर ऑफ ए हेरिटेज ट्रेन सच एज डेक्कन क्वीन एंड द पैलेस ऑन व्हील्स हैव आल्सो बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर एन टूरिस्ट। अब देखो ये स्पेशल ट्रेन्स होती हैं, ठीक है, कुछ ट्रेन्स को स्पेशल ट्रेन्स के नाम से चलाया जाता है। जैसे इसमें इन योर बुक इट इज गिवन डेक्कन क्वीन एंड द पैलेस ऑन व्हील्स। So these trains are for the tourists who are coming in our country from the other countries. ये ट्रेन्स उन टूरिस्ट के लिए है बेटा जो अदर कंट्री से हमारी कंट्री विजिट करने आते हैं। ठीक है, हमारी कंट्री का भी बहुत पुराना परंपरा इतिहास है ना, हेरिटेज, जो पुरानी चीज़ें हैं हमारे यहाँ भी, तो जो बाहर से लोग जो विजिट करने आते हैं उनके लिए ये स्पेशली उन लोगों के लिए, फॉरेन टूरिस्ट के लिए ये ट्रेन्स चलाई गई हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं, ये तो हमने सारा डिस्कस किया अपनी कंट्री के बारे में, अपनी कंट्री इंडिया के बारे में, ये सब हम लोग ने इंडिया रेलवेज के बारे में डिस्कस किया। अभी जो भी डिस्कस किया हमने अपनी कंट्री के रेलवेज के बारे में डिस्कस किया। नाउ इन द बुक सम railways of some other countries and what are the fastest trains running in that countries, that is also given in the book. Now let me discuss that part of the book chapter.
नाउ यूरोप and North America have railway network more extensive. अगर हम लोग यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के रेलवेज के बारे में डिस्कस करें तो सबसे बड़ा नेटवर्क इन्हीं का है, रेलवेज का. इज इट क्लियर? यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका हैव रेलवे नेटवर्क मोर एक्सटेंसिव देन एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड. ठीक है, सबसे बड़ा जो रेलवे नेटवर्क है वो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका का है. इसे चाहे तो आप लोग अंडरलाइन कर सकते हो. यू कैन अंडरलाइन इन योर बुक आल्सो. नेक्स्ट है द लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन इन द वर्ल्ड इज द रशियन ट्रांस साइबेरियन रेलवे कनेक्टिंग मॉस्को. ठीक है, और व्लादिवोस्टॉक. ठीक है, तो सबसे बड़ी जो लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन है इसे आप अंडरलाइन कर लो बेटा. इट इज गिवन इन योर बुक. लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन इन द वर्ल्ड इज द रशियन ट्रांस साइबेरियन रेलवे. ठीक है, दिस इज द लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन है. आफ्टर दैट देयर आर द नेम ऑफ द हाई स्पीड ट्रेन इज गिवन ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज लाइक चाइना की हाई स्पीड ट्रेन का नाम दिया है चाइना CRH2. These are the name of, जैसे अभी मैंने इंडिया का नाम लिखवाया था 3-4 ट्रेनों का, राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी, दुरंतो एक्सप्रेस और इन प्रेजेंट में अब वंदे भारत. सो दीज आर द नेम ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन्स ऑफ अदर कंट्रीज आल्सो. Japan's bullet train. These are the name of the trains. UK, the name of the train is Eurostar. And France, name of the train is TGV. These are the among the world fastest train. ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट ट्रेन है. चाइना, जापान, यूके और फ्रांस की जो दिया है. चाइना CRH2, जापान बुलेट ट्रेन एंड यूके की यूरोस्टार एंड फ्रांस की TGV. These are the world fastest train. और you also note down the speed of this train. The speed of this train is given. Speed is given 300 किलोमीटर पर आवर. सोचो 1 hour में these trains are the very fastest trains because in 1 hour they cover the distance of 300 किलोमीटर. सोचो 300 किलोमीटर का डिस्टेंस ये 1 आवर में कवर कर दे रही है. ठीक है, और लेकिन अगर पूरे वर्ल्ड की बात करो तो सबसे फास्टेस्ट ट्रेन कहाँ की है? वो चाइना की है. इज इट क्लियर? सबसे फास्टेस्ट ट्रेन जो है वो चाइना की है. ठीक है, सो ये सारी चीजें हमने आपको रेलवेज में डिस्कस की. देखो अदर रेलवेज में ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया बुक में. अदर रेलवेज में बताया है कि यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका हैव अ रेलवे नेटवर्क मोर एक्सटेंसिव देन एनीवेयर एल्स. सबसे बड़ा जो रेलवे नेटवर्क है वो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका का है. आफ्टर दैट
the name of the fastest train of different country is given and their speed is also given. Okay, thank you student.